کون سی سورت 3 ہے؟ آخری پارے کے اندر والتین والزیتون، اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے انجیر کی اور زیتون کی۔ مفسرین کہتے ہیں انجیر تو معلوم ہوتا ہے، لیکن زیتون سے مراد مسجد اقصی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کی قسم کھائی ہے، اس قدر وہ بابرکت مقام اور جگہ ہے۔ قرآن مجید میں 15ویں پارے کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کے معراج کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمنوا اليهود والذين أشركوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اور کسی کے لیے بڑا مسئلہ ہو نہ ہو، لیکن ایک ایمان والے شخص کے لیے، مسلمان کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ ہے فلسطین کا، بیت المقدس، یا آپ کہیں بیت المقدس، جہاں مسجد اقصی ہے، فلسطین کا خطہ، ریاست، علاقہ، عالم اسلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے جو وہاں پر صورتحال چل رہی ہے۔ نبی علیہ السلام سے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایو مسجد، کون سی ایسی مسجد ہے جو سب سے پہلے زمین پر بنائی گئی؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ مسجد حرام، بیت اللہ، یہ سب سے پہلے مسجد بنائی گئی۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے گھروں میں دوسرے نمبر پر بنائی گئی مسجد اقصی تھی۔ انتہائی قدیم تاریخ ہے مسجد اقصی کی۔ بیت الحرام کو تعمیر کس نے کیا؟ بیت اللہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا انسانوں میں سے؟ سیدنا آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا۔ روایات کے اندر ملتا ہے، تاریخ پڑھیں، احادیث کے اندر بھی اس کے کچھ شواہد ملتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتلایا کہ مسجد بیت اللہ اور اقصی، ان دونوں کے درمیان جو بنانے کا وقت تھا وہ 40 سال تھا۔ تو پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام نے مسجد بیت اللہ، مسجد حرام کو تعمیر کیا، اور 40 سال بعد آدم علیہ السلام نے ہی مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ یہ دنیا کے سب سے قدیم مسجدیں ہیں۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت تک بیت اللہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، اور کیونکہ مسلمانوں کا یہ متفقہ نظریہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا وہ شہر ہے مکہ، بیت اللہ اور مسجد نبوی، ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ جو مسلمانوں کا
ताल्लुक़ है। इस बिना पर अभी तक बहुत सारी साजिशें की गई लेकिन नाकाम हुई। कुफ़ार भी जानते हैं कि इनके अंदर हाथ डालना, इनके मसले में पड़ना कोई आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने तीसरी राह इख्तियार करते हुए मस्जिद अक्सा पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश की और एक मज़मूम और बग़ैर किसी दलील के एक दावा घड़ लिया। वो दावा ये करने लगे कि सबसे पहले हमारे रसूलों ने इसको तामीर किया और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर किया था, इसलिए ये हमारी मिल्कियत है। ये दावा इसी बात से ख़त्म हो जाता है जो मैंने पहली हदीस बयान की कि सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर किया। सैयदना सुलेमान तो बहुत अरसा बाद आए थे, उन्होंने बाद में तामीर किया, लेकिन असल जो बुनियाद रखी थी वो बहुत पहले की थी, बहुत पहले की बुनियाद रखी गई थी मस्जिद अक्सा की। ये अल्लाह ताला का घर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह बैतुल मुक़द्दस की तारीफ़ फ़ज़ाइल बयान किए हैं, आपने मक्का के बैतुल्लाह के भी फ़ज़ाइल बयान किए हैं और मस्जिद नबवी के भी फ़ज़ाइल बयान किए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दुआएं की। सुनन इब्ने माजा की गालिबन ये रिवायत है। आपने फरमाया सैयदना सुलेमान ने 3 दुआएं की। कब दुआएं की? जब मस्जिद अक्सा को तामीर कर दिया। जब मस्जिद अक्सा को तामीर किया, ये बाद की तामीर है, इब्तिदाई तामीर नहीं है। जब उनका दौर था, जब अल्लाह ने उनको नबूवत दी थी, रिसालत दी थी, उस वक्त सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर की और दुआ की। दुआ कौन सी की थी? एक दुआ ये की थी कि अल्लाह मुझे हिकमत अता फरमा। दूसरी दुआ ये की कि ए अल्लाह, जो तूने मुझे हुकूमत दी है, मेरे बाद ऐसी हुकूमत किसी को नहीं देना। तीसरी दुआ ये की कि अल्लाह, कोई भी इस मस्जिद अक्सा के अंदर आकर नमाज पढ़े, तुझसे दुआ मांगे, मग़फ़िरत मांगे, अल्लाह उसकी गुनाहों को इस तरह माफ़ कर देना कि जिस तरह वो अपने माँ के पेट से जनकर आता है उस पर कोई गुनाह नहीं होता, अल्लाह इस तरह उसको गुनाहों से पाक कर देना। प्यारे पैगम्बर हबीब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, पहली 2 दुआएं तो कबूल हो गई सैयदना सुलेमान की, और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने तीसरी दुआ भी कबूल कर ली। जिसका मतलब क्या है कि किसी को मौका मिलता है जाके मस्जिद अक्सा के अंदर 2 रकातें नफिल पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, नमाज के इरादे से जाता है और फिर वो मग़फ़िरत मांगता है तो अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। ये मस्जिद अक्सा की फ़जीलत है। ये मस्जिद अक्सा की फ़जीलत सिर्फ़ ये नहीं है, बहुत सारी अहादीस हैं। कुरान मजीद में सूरत 3 बहुत सारे मुफस्सिरीन ने तफसीर करते हुए ये कहा कि अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा की कसम खाई है। कौन सी सूरत 3 है? आखिरी पारे के अंदर, वत्तीन वज़्ज़ैतून, अल्लाह फरमाता है कसम है मुझे इंजीर की और जैतून की। मुफस्सिरीन कहते हैं इंजीर तो मालूम होता है, लेकिन जैतून से मुराद मस्जिद अक्सा है कि अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा की कसम खाई है। इस कदर वो बाबरकत मकाम और जगह है। कुरान मजीद में 15वें पारे के इब्तिदा में अल्लाह ताला ने प्यारे पैगम्बर के मेराज का तज़किरा फरमाया। फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू। पाक है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात, जिस ज़ात ने पैगम्बर को असरा भी कराया, मेराज भी कराया, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक सफ़र करवाया। इस सफ़र को क्या कहते हैं? असरा का सफ़र। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेराज की इब्तिदा मस्जिद अक्सा से होती है। और अल्लाह ने फरमाया कि उसके इर्द गिर्द को भी हमने पाकीज़ा बना दिया। मस्जिद अक्सा का इर्द गिर्द भी पाकीज़ा है, बाबरकत है। बारकना हौलहू, हमने उसके इर्द गिर्द को पाकीज़ा बना दिया, बाबरकत बना दिया। ये अंबिया का मस्कन है,
सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा सैयदना इसहाक वहीं पर बड़ा होता है, उसकी औलाद वहाँ होती है। सैयदना इब्राहीम ने जब मक्का में बैतुल्लाह के आसपास में सैयदा हाजरा को सैयदना इस्माइल, जो इस्माइल मासूम है, दूध पीता है, उसको छोड़कर जा रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में नक्शा बयान किया है। फरमाया अल्लाह ताला ने, रब्बना इन्नी अस्कन्तु ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ए परवरदिगार, तेरा ऐलान हो गया, तेरी वही आ गई, तेरा बुलावा आ गया। अल्लाह तेरे पाक घर के बराबर में मैं अपनी औलाद को, अपनी बीवी को तेरे हवाले करके जा रहा हूँ। और रिवायत के अंदर आता है कि सैयदना इब्राहीम ये जो सफ़र शुरू कर रहे थे, आगे जाकर एक पहाड़ के दामन में खड़े होते हैं। पहाड़ के दामन में खड़े होकर वहाँ जब खड़े होते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते। बच्चा मासूम है जो 80 साल की उम्र के बाद अल्लाह ने अता किया है। पर मैं इसको भी छोड़ दे, बीवी को भी छोड़ दे, चला जा, तू सफ़र कर, हिजरत के लिए चला जा। अल्लाह का हुक्म था। फ़लस्तीन की तरफ हिजरत कर रहे हैं और फिर रास्ते में जाकर पहाड़ के दामन में आँखों से आंसू आ जाते हैं। फिर ये दुआ करते हैं, अल्लाह मैं ऐसे मकाम पर अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर जा रहा हूँ, गैर ज़ी ज़रइन, ऐसा मकाम के जहाँ फल फ्रूट भी नहीं उगते, पथरीली ज़मीन है, पहाड़ी इलाका है जहाँ फसल भी नहीं उगती, खाने के लिए पता नहीं इनको कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। अल्लाह तेरे हवाले करके जा रहा हूँ, तूने मुझे हुक्म दिया है। अल्लाह ने फिर आबे ज़मज़म के ज़रिए उनकी मदद की। तो ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मस्कन भी फ़लस्तीन है, वहाँ रहते हैं। पता चला उर्दन में लूत अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की गई है। सैयदना इब्राहीम, मैं चंद तारीख़ की बातें चुन चुन कर आपके सामने रख रहा हूँ। बड़ी तारीख़ है फ़लस्तीन की, अंबिया का मस्कन है। वहाँ पता चला कि उर्दन के करीब जहाँ लूत अलैहिस्सलाम रहते थे, वहाँ पर उनकी गुस्ताखी की गई है। वो भी अल्लाह के नबी थे। सैयदना इब्राहीम ने पूरा लश्कर तैयार किया। लश्कर तैयार करके लूत अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करने वाले लोगों पर चढ़ाई की और उनसे फ़तह हासिल करके अल्लाह के हुक्म से वापसी आए। जब उस वक्त फ़लस्तीन का जो बादशाह था, उसने दूर बाहर लोगों के साथ निकल कर सैयदना इब्राहीम का इस्तकबाल किया कि तू कामयाबी हासिल करके आया है। तो यही फ़लस्तीन था जहाँ सैयदना इब्राहीम कई साल रहे, सैयदना सुलेमान रहे, सैयदना इसहाक रहे, सैयदना यूशा बिन नून रहे। यहाँ अंबिया रहे, यहाँ औलिया रहे, यहाँ मुहद्दिसीन रहे, यहाँ किबार ताबईन रहे। ये मकाम इतनी फ़जीलत वाला है कि मेरे और आपके पीर व मुर्शिद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला सलासति मसाजिद। फरमाया कि सफ़र नीयत अजर की उम्मीद लेकर सफ़र करना 3 जगहों के अलावा जायज़ नहीं है। सफ़र की नीयत करना और साथ में अजर की नीयत करना। बहुत सारे लोग जाते हैं बहुत सारे मकामात पर और अजर की नीयत लेके जाते हैं। मसलन आजकल के दौर में बहुत सारे लोग कब्रिस्तान भी जाते हैं अजर की नीयत से, दरगाहों पर जाते हैं अजर की नीयत से, किसी बंदे के पास मुलाकात से जाते हैं तब भी अजर की नीयत से, बड़े बड़े सफ़र करते हैं, मकामात के सफ़र करते हैं और कहते हैं वहाँ अजर मिलेगा, नेकियां मिलेंगी, ये होगा वो होगा। लेकिन मेरे पैगंबर ने फरमाया सिर्फ़ 3 जगहें हैं जहाँ सफ़र की नीयत अजर की करके सफ़र किया जाए तो अजर मिलेगा। फरमाया कि सबसे पहला बैतुल हराम, मस्जिदुल हराम। सही बुखारी की हदीस है, आपने फरमाया मस्जिद हराम की तरफ सफ़र करना ये बाबरकत सफ़र है, अल्लाह अजर देगा। फरमाया मस्जिद रसूल, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना में जाना, मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए सफ़र करना, फरमाया कि अजर मिलेगा। तीसरे नंबर पर फरमाया मस्जिद अक्सा, अक्सा मस्जिद की तरफ, बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाना, सफ़र करके नीयत अजर की लेके सफ़र करना, फरमाया अजर मिलेगा। ये 3 मकाम हैं दुनिया के अंदर बाबरकत फ़जीलत वाले, जहाँ जाते बंदे को अजर मिलेगा। बाज़ रिवायतों में मिलता है कि बैतुल
मुक़द्दस के अंदर, मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज जो बंदा पढ़ता है, अल्लाह ताला 250 नमाज़ों का अजर देता है। ये बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा को मस्जिद अक्सा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को जो मेराज कराया था, उसका पहला हिस्सा, पहला सफ़र मस्जिद अक्सा से हुआ था। मस्जिद अक्सा इसलिए कहा जाता है कि बैतुल्लाह से काफ़ी दूर है फ़लस्तीन में, इसलिए उसको अक्सा कहा जाता है। अक्सा का माना है दूर, अक्सा का माना दूर, तो बैतुल्लाह से काफ़ी दूर है, इसलिए उसको अक्सा कहा जाता है। बैतुल मुक़द्दस क्यों कहा जाता है? बैतुल मक़दस या मुक़द्दस इसलिए कहा जाता है, वो बड़ी मुक़द्दस पाकीज़ा सरज़मीन है जहाँ पर अल्लाह के अंबिया ने वक़्त गुजारा, ज़िंदगियाँ बसर की, इसलिए उसको बैतुल मुक़द्दस भी किया जाता है। यहाँ दीन के इस्लाम फैलाने के लिए अंबिया आए और आखिर में भी यहीं पर मुसलमानों को गलबा मिलना है। दज्जाल से निजात यहाँ से मिलेगी। एक रिवायत के अल्फाज हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 मस्जिदों में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद तूर और फरमाया मस्जिद अक्सा। ये 4 ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता। ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ये मस्जिद अक्सा की फ़जीलतें हैं, मकाम और मर्तबा है। अब ज़रा कोई फ़ैसला करे, कोई जजमेंट करे कि ये जो ख़ित्ता है, ये जो ज़मीन है, ये जो जगह है, इस पर यहूदियों का हक़ बनता है या मुसलमानों का हक़ बनता है? फ़ैसला करें, रिवायात को पढ़ें, कुरान मजीद की आयत को पढ़ें, तो पता चलता है कि इस पर हक़ जो है सिर्फ़ मुसलमानों का है, सिर्फ़ मुसलमानों का हक़ है। सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब, बदबख्त आज भी लोग ऐसे मिलेंगे जो उनकी गुस्ताखी करते हैं। आज हकीकत में मेरा उन्वान यही था, मौजू यही था कि सैयदना उमर की सीरत बयान करूं। जब सैयदना उमर की सीरत आती है तो अक्सा का ज़िक्र तो ज़रूरी है, बैतुल मुक़द्दस का ज़िक्र तो ज़रूरी है, लेकिन फिर सोचा कि जो वहाँ के हालात हैं, हक़ ये बनता है कि आज का आधा घंटा बैतुल मुक़द्दस के लिए होना चाहिए। उसमें भी तज़किरा अमीरुल मोमिनीन का आएगा। मौजू अक्सा का बयान करो या मौजू सैयदना उमर का बयान करो, दोनों मौजू के अंदर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर फ़ारूक का तज़किरा आएगा। उसके बग़ैर सैयदना उमर की तो सीरत क्या बयान करना कि इतना अजीम कारनामा उन्होंने अंजाम दिया कि मस्जिद अक्सा को ईसाइयों के कब्ज़े से आज़ाद किया। जब मस्जिद उमर की बुनियाद रखी जा रही थी, वहाँ सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्फाज कहे थे, फरमाया मस्जिद उमर की बुनियाद रखी जा रही है, फरमाया ये सुलेमान का ख़ित्ता है, ये अल्लाह के रसूल दाऊद का ख़ित्ता है, ये अल्लाह के रसूल ईसा का ख़ित्ता है, अल्लाह के रसूल मूसा का ख़ित्ता है। रसूलों के नाम लेकर कहा ये रसूलों की ज़मीन है, मस्कन है। फरमाया इस ज़मीन पर हक़ भी हमारा है, इसलिए कि अम्बिया को उनको हक़ पर हम ही मानते हैं और कोई आज तक उनको हक़ पर इन्होंने नहीं माना, क्योंकि उनकी तो मानते नहीं है, ये कैसे दावा करते हैं कि हम सच्चे हैं। फरमाया मस्जिद अक्सा पर हक़ भी हमारा है, क्योंकि हमने अल्लाह के अंबिया उनको माना है जिस तरह उनको मानना चाहिए, इस तरह हकीकी तौर पर मुसलमानों ने उनको अल्लाह का रसूल माना है। ये रसूलों की सरज़मीन है और इस पर हक़ भी हमारा है, मुसलमानों का हक़ है। किसी यहूदी, सलीबी, ईसाई, हिंदू, काफिर का कोई हक़ नहीं है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमा दिया, फरमाया लतजिदन्नहुम अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी को मुसलमानों का दुश्मन पाओगे, ईमान वालों का दुश्मन पाओगे, फरमाया यहूदियों को और मुशरिकों को पाओगे। जो अल्लाह के साथ शिरक करने वाले ये समझें कि इसके अंदर सारे कुफार आ गए। यहूदियों ने भी अल्लाह के साथ शिरक किया, ईसाइयों ने भी अल्लाह के साथ शिरक किया, और जितने
जितने भी मुशरिकीन हैं, काफिर हैं, हिंदू हैं, बुद्ध मत हैं, ये सारे के सारे मुसलमानों के दुश्मन हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने नाम लेकर, नॉमिनेट करके फरमाया अल यहूद, ख़ास तौर पर यहूदी मुसलमानों के दुश्मन हैं। आज मुसलमानों के दुश्मन बेजा एक गरीब कौम पर मुसल्लत हैं, उन पर जुल्म बर्पा किए हुए हैं, और आज मुसलमान खामोश हैं, हुकूमतें भी खामोश हैं, इदारे भी खामोश हैं, ख्वाब गफलत में हैं। अल्लाह की कसम, मुसलमानों के अंदर कुव्वत ईमानी होती तो फिर आज इसको क्या ज़रूरत थी, जो एक छोटा सा एक खित्ता है, छोटी सी एक कौम है, वो पूरे एक मुल्क पर कब्ज़ा जमा के बैठी हुई है। आज मुसलमानों के होंठ नहीं हिलते, ना अवाम के होंठ हिलते हैं, ना हुक्मरानों के होंठ हिलते हैं, ना लीडरों के होंठ हिलते हैं। 6-6 लाख फौज के अमीर मुकर्रर हैं और बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़े नाम हैं, उनकी अभी तक ज़बान नहीं हिली कि ये कह दें कि हमारा हक है फ़लस्तीन पर, हमारा हक है गज़ा पर, हमारा हक है तल अबीब पर, हमारा हक है इस रियासत पर, इस खित्ते पर। हम ना यहूदियों को काबिज होने देंगे, ना ईसाइयों को काबिज होने देंगे, ये हमारा हक है। अंबिया जो आए हकीकत में हम उनको मानने वाले हैं। ये वो खित्ता है जिसको ईसाइयों से सैयदना उमर ने आज़ाद करवाया। 1300 साल तक मुसलमानों की हुक्मरानी रही, बीच में फिर काफिरों ने इस पर कब्ज़ा किया, 90 साल तक वो कब्ज़ा जमा के रखा। फिर अल्लाह ताला ने सलाहुद्दीन अय्यूबी रहिमहुल्लाह को भेजा, जिन्होंने आकर फिर मुकाबला किया, काफिरों के यहाँ से भगाया और इस मैदान को साफ़ किया, अर्ज़े कुदस को दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में लिया। आज फिर ये गासिब गसब करके कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और जो मन में आता है अपनी मर्ज़ी करते हैं, जुल्म करते हैं, निहत्ते लोगों को मारते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वमा लकुम ला तुकातिलून फ़ी सबीलिल्लाह, क्या हो गया किताल नहीं करते हो, क्या हो गया तुम्हें। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में, ये 58 तकरीबन जो मुसलमानों के मुल्क हैं, 58 मुल्क, उनके बयानात नज़र नहीं आते, डर छुप के कोई इशारों में कोई बयान देंगे, वाज़े बयान नहीं नज़र आता। क्यों? क्योंकि ईमान मौजूद नहीं है, वो ईमानी गैरत नहीं है, डूब कर मर जाना चाहिए। अगर ऐसा किरदार एक मुसलमान का, जो अपने आप को ईमान वाला कहे, मुसलमान कहे, मोमिन कहे, और फिर वो मुसलमान की जुल्म पर आवाज़ न उठाए, फिर उसके बारे में क्या तबसरा किया जाए? कैसे मैं मानूं कि वो गैरतमंद है? और एक ईमान वाला गैरतमंद होता है। आज वो बदबख्त जालिम काबिज लोग हमारी माँओं बहनों को, उन पर तशद्दुद करते हैं, उनके साथ तरह तरह का सलूक करते हैं, और फिर वो जो तशद्दुद वाला सलूक है वो सोशल मीडिया पर भेजते हैं, तस्वीरें भेजते हैं, वीडियो भी भेजते हैं। क्यों नहीं मुश्ताल होती ये कौम? क्यों नहीं ख्वाब गफलत से निकलते मुसलमान? ऐसी पाबंदियाँ, ऐसी ये रियासतें बना दी, ऐसे कानून बना दिए कि आम शहरी भी अगर जाना चाहे किसी मुसलमान की मदद करने के लिए तो बेचारा वो भी नहीं जा सकता। कैसे जाए वो? इनके सारे कानून ही अंधे, सारे उल्टे कानून, हदबंदियाँ कर दी। हुकूमत चाहेगी तो होगा मामला, नहीं चाहेगी तो चाहे कितना भी कोई फरमाइश करता रहे, हाथ जोड़ता रहे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। नहीं, फ़िलहाल ने मना किया है, उसका दावा है, उसका हुक्म चलता है, अल्लाह का हुक्म तो चलता ही नहीं है। रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में क्या फरमाता है? फरमाता है कि जो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करते हैं वही फासिक है। फासिक किसको कहते हैं? जो पेदर पे गुनाह करता रहे, पेदर पे गुनाह करता रहे, कभी तौबा ही ना करे, उसको कहते हैं बड़ा मुजरिम, फासिक। अल्लाह ने फरमाया यही काफिर हैं जो अल्लाह के फ़ैसलों को नहीं मानते, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले चलाते हैं, कानून भी अपने, रियासतें भी अपने, फ़ैसले भी अपने, चाहे कोई जलता रहे, मलता रहे, सड़ता रहे, कोई परवाह नहीं है। अपनी जो है मौज मस्तियों के अंदर फरमाया कि यही अल्लाह ने इसको काफिर कहा है जो अल्लाह के फ़ैसलों को नहीं मानता। फरमाया जालिम भी यही है,
فمن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون هم الفاسقون هم الظالمون۔ فرمایا کافر بھی یہی ہے، ظالم بھی یہی ہے، فاسق بھی یہی ہے، اپنی مرضی کے فیصلے کرتے ہیں۔ رب نے قرآن میں فرمایا نہتوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو، لیکن کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ یہ دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ ایٹمی ملک ہے، ایٹمی ملک، قوم سے اپیل کر رہے ہیں دعا کرو فلسطین کے لیے۔ ایسے بیان سے تو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ ایٹمی ملک ہے، ایٹمی طاقت ہے، عوام سے اپیل ہو رہی ہے دعا کرو اللہ کوئی ابابیل بھیج دے۔ ایسی دعائیں قبول؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ جب سوال ہوگا تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ اللہ پوچھے گا کہ یہ تم اپنی عوام کو کہہ رہے تھے کہ ابابیل بھیج دے، اللہ دعا کرو ابابیل بھیج دے، کوئی معجزہ کر کے دکھا دے، اللہ ان کو ہلاک کر دے، کیوں نہیں گئے خود؟ تمہارے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، تمہارے پاؤں کٹے ہوئے تھے، کیا تمہارے پاس طاقت نہیں تھی؟ میں نے تمہیں ایٹمی قوت بنایا، میں نے تمہیں اتنی طاقت دی، پھر بھی تمہارے جو ہے قدم نہیں اٹھے، تمہاری زبان نہیں ہلی، دعائیں کر رہے ہو، دعائیں کیا قبول ہوں گی؟ اللہ فرماتا ہے کوشش کرو، کوشش کرو، ہاتھ اٹھاؤ، قدم اٹھاؤ، کوشش کرو، محنت کرو، پھر ساتھ میں دعائیں کرو۔ کوشش کوئی نہیں ہے، محنت کوئی نہیں ہے، خالی دعائیں ہیں۔ تہجد میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اور جو ہے قنوت نازلہ عشاء میں ہو رہا ہے، قنوت نازلہ فجر میں ہو رہا ہے، پانچوں نمازوں میں قنوت نازلہ ہو رہا ہے، لیکن کیسے ان کو مدد ملے؟ تمہارے پاس سب قوت اللہ نے دی ہے، پھر بھی آواز نہیں اٹھاتے، تو پھر دعاؤں کا کیا فائدہ ہے؟ دعائیں تو تب ہے جب کچھ ہو نا ہاتھ میں، دعائیں تو تب ہے جب آپ کے پاس کچھ ہو نا، طاقت نہ ہو، آپ اتنے کمزور ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کفار ہم پر غالب آ جائیں گے، اب دعا کرو اللہ غیبی مدد کر، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود غیبی مدد کی دعائیں کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دعائیں پھر بھی اللہ اگر قبول کرے تو ان کی قبول کرے جو میدان جہاد میں موجود ہے، میدان عمل میں موجود ہیں، ان کے بچے بھی کٹ رہے ہیں، ان کی مائیں بھی کٹ رہی ہیں، ان کی بہنیں بھی کٹ رہی ہیں، اور آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا منظر ہوگا؟ اللہ اکبر۔ مسجد اقصیٰ میں جب اذان ہوتی ہے، آپ سنیں، مسجد اقصیٰ میں یہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان دینے والا مؤذن سسکیاں بھر کے روتا ہے، سسکیاں بھر کے۔ وہ کیوں روتا ہے؟ حی علی الصلاۃ پہ رونا لگتا ہے تو کئی منٹ گزر جاتے ہیں، وہ حی علی الفلاح کہہ نہیں سکتا۔ کیوں روتا ہے؟ یہ بے بسی پر روتا ہے کہ ہم اتنے بے بس ہیں، مسلمان دنیا کے اندر اتنے ممالک ہیں اور ہم اکیلے لڑ رہے ہیں، نہتے لڑ رہے ہیں، کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ وہ ظالم اور جابر اسرائیل اگر کچھ کرتا ہے تو ظالموں کے جو دیگر جو اس کے بیک پہ موجود ہیں وہ پوری گاڑیاں بھیجتے ہیں اسلحوں کے ساتھ، پورے جہاز اسلحوں سے لدے ہوئے بھیجتے ہیں۔ ہماری جو عوام حکمران سارے کے سارے خواب غفلت میں ہیں، اس لیے سسکیاں بھر کے وہ روتے ہیں کہ ہماری مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم یہاں مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، ان پر جو یہ معاملہ چل رہا ہے یہ عالم اسلام کی آزمائش ہے۔ ان کی آزمائش تو ہے، ان کی آزمائش تو ہے، وہ آزمائش میں ہیں، بچے بھی قربان کر رہے ہیں، بوڑھے بھی قربان کر رہے ہیں، اور سب کو قربان کر رہے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی آزمائش مسلمانوں کی ہے، ایٹمی پاور ملکوں کی ہے، اور دنیا میں عالم اسلام میں موجود مسلمانوں کی آزمائش ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کیا کوشش کرتے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے، یہ کیا اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی آزمائش تمام انسانوں کے لیے ہے۔ جہاں تک میری آواز پہنچے میں ان سے یہی اپیل کروں گا، مسلمانوں کے ممالک ان کو آگے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومنین سارے کے سارے بھائی ہیں، جتنے بھی ایمان والے ہیں سارے کے سارے بھائی ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم فرمایا مثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسحر والحمى، فرمایا کہ مسلمان کی، مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے ایک جسم کی مانند ہے۔ فرمایا جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے،
जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ होती है, पूरे जिस्म के अंदर तकलीफ़ शुरू हो जाती है, बुखार हो जाता है, बंदे को बर्दाश्त नहीं होता। फरमाया इसी तरह मोमिन का ताल्लुक़ होना चाहिए। दुनिया के किसी भी खित्ते में, दुनिया के किसी भी कोने पर अगर किसी मुसलमान को तकलीफ़ होती है तो मुसलमान को इसी तरह महसूस करना चाहिए जिस तरह उसकी अपनी तकलीफ़ है। आज ये महसूस नहीं किया जाता। अगर ये महसूस किया जाता तो किसी को परवाह ना होती, आज मदद के लिए पहुंच जाते वहाँ। अगर ये मुसलमान ममालिक सारे मिलकर एक थूक भी फेंके तो इसराइल सारा गर्क हो जाए। एक थूक भी मिलकर फेंके तो इतना सा तो उनका इहाता है, इतने से लोग हैं, मुट्ठी भर लोग। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी है, अपने ईमान की इस्लाह करनी चाहिए और जिस कदर हमसे हो सकता है हम करें, जिस कदर हो सकता है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को और मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि वो भी कदम उठाएं और अपने भाइयों का, अपनी माँओं का, अपनी बहनों का साथ दें। व आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दूसरा ऐलान है कि हमने अर्रहमान एकेडमी के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है जो दरस निज़ामी का मुख्तसर कोर्स है। 4 साल का दरस निज़ामी का कोर्स है, बालागाम के अंदर शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑनलाइन भी चल रहा है और ऑन साइट भी है। तो इस वक्त 4 दिन हो चुके हैं, आज 6ठा दिन है। आज तो छुट्टी है, जुम्मे का दिन है, लेकिन असर से लेकर मगरिब तक इसका टाइम रखा गया है। मुख्तसर टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस होती हैं। तो साथियों से गुजारिश है कि ऑनलाइन अपनी बच्चियों की भी दाखिला करवाएं, बच्चों की भी दाखिला कराएं और वहाँ पर आकर विज़िट भी करें और हमारी क्लास को भी देखें। इंशाअल्लाह दुनिया के साथ दीनी तालीम ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए।